अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीतिक मोर्चे पर नई मिसाल कायम कर रहे हैं। दोनों के रिश्ते का नया रंग दुनिया के सामने आ रहा है। आज पूरे दिन ओबामा और मोदी के मुलाकात के तमाम रंग नजर आए। Dr. Nesma Abdullah, Minister of Minority Affairs. Srimati Menka Sanjay Gandhi, Minister of Women and Child Development. Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of Communication and Information Technology. Srimati Harsimrat Kaur Badal, Minister of Food Processing Industries. Srimati Smriti Zubin Irani, Minister of Human Resource Development. Shri J.P. Nadda, Minister of Health and Family Welfare. Dr. Harshvardhan, Minister of Science and Technology and Earth Sciences. Shri Najib Jang, Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi. Shri Ghulam Nabi Azad, Leader of Opposition, Rajya Sabha. Shri S. Ramadurai, Chairman, National Skill Development Agency, NSDA. Shri Akhilesh Yadav, Chief Minister of Uttar Pradesh. Srimati Vasundhara Raje, Chief Minister Rajasthan. Shri Justice T.S. Thakur, Judge Supreme Court of India. Shri H.S. Brahma, Chief Election Commissioner. Shri Rajiv Pratap Rudy, Minister of State for Skill Development, Entrepreneurship and Parliament Affairs. Shri Dharmendra Pradhan, Minister of State for Petroleum and Natural Gas. Shri Prakash Javadekar, Minister of State for Environment, Forestry and Change. Shri Piyush Goyal, Minister of State for Power, Coal and Renewable Energy. Shrimati Nirmala Sitharaman, Minister of State for Commerce and Industry. जो भी बोल रहा है हमको यहां से बता दो। श्री अजीत के सिंह, कैबिनेट सेक्रेटरी। श्री मुकुल रोहतगी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। श्री नरेंद्र मिश्रा, representative to the Prime Minister. Shri Ajit Doval, National Security Advisor, Prime Minister Office. Dr. P.K. Mishra, Additional Private Secretary to the Prime Minister. Air Chief Marshal Arun Brahma, Chief of Air Staff. Admiral Arvind Dhawan, Chief of the Naval Staff. General Dalveer Singh, Chief of the Army Staff. Mrs. Sushmita Mukherjee, Granddaughter of the President. Shri
Shri Mallikarjun Kharge, Member of Parliament, Lok Sabha. Shri M. Veerappa Moily, Member of Parliament, Lok Sabha. Shri Anand Sharma, Member of Parliament, Rajya Sabha. Shri Jyotirajit Scindia, Member of Parliament, Lok Sabha. Shri Rajkumar Pul, Member of Parliament, Rajya Sabha. Shri Sambasundar Rao Revati, Member of Parliament, Lok Sabha. Shri Bhavan K. Verma, Member of Parliament, Rajya Sabha. Professor Jogin Chaudhary, Member of Parliament, Rajya Sabha and Middle Rajasthan. Shri Ashwini Kumar, Member of Parliament, Lok Sabha. Shri Dushyant Chaudhara, Member of Parliament, Lok Sabha. को दिखा रहे हैं जहां पर गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि होंगे हिंदुस्तान के, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा नजर आ रहे हैं। फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा इन तस्वीरों में है। और जो प्रीति भोज यहां पर होने वाला है उसके लिए जो तमाम विशेष मेहमान आए हैं, शख्सियतें आई हैं, उन सब से एक एक करके बराक ओबामा का परिचय करवाया जा रहा है। करीब सुबह 10 बजे बराक ओबामा पहुंचे थे भारत और उसके बाद से जिस तरह के उनके कार्यक्रम रहे हैं उसमें हालांकि सबसे ज्यादा सुर्खियां तो इस बात ने बटोरी कि ओबामा और नरेंद्र मोदी की मुलाकात किस तरह की हुई है। लेकिन ये देखिए, औपचारिकताएं ही सही, बराक ओबामा और मिशेल ओबामा जिस तरीके से सबका अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, ये उसकी तस्वीर है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी मंजीत। आज काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा बराक ओबामा का, लेकिन राष्ट्रपति के बैंक्वेट में इस वक्त काफी गर्मजोशी से लोगों से मिल रहे हैं और कई प्रांतों के जो स्वादिष्ट व्यंजन उनको परोसे गए थे आज राष्ट्रपति के बैंक्वेट में। और खासतौर से इस बार राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक मेनू भी बनाया गया था अलग तरह से, और उसको अभी मीडिया को भी दिया गया पहली बार। और अलग अलग प्रांतों के कई व्यंजन थे उसमें जिनका स्वाद बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने लिया है। इसके अलावा अब तमाम क्षेत्रों के जो लोग इस राष्ट्रपति के खास बैंक्वेट में शामिल हुए थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के लोग हों, हालांकि सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया था, इसके अलावा जो भारत रत्न सम्मानित लोग हैं, इसके अलावा फिल्म उद्योग से हालांकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे। मंजीत से हमारा संपर्क इस वक्त कट गया है, हम आगे बात उनसे करेंगे। लेकिन बराक ओबामा का जो ये दौरा है अलग अलग तरह के संकेतों में लिपटा है। इतिहास में पहली बार है कि अमेरिका के कोई राष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं तो गणतंत्र दिवस पर विशेष मेहमान बनने की खातिर। हालांकि कई द्विपक्षीय साझेदारियाँ हुई हैं, माफ़ कीजिएगा, कई द्विपक्षीय मुलाकातें हुई हैं, कई द्विपक्षीय दौरे हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा का दौरा ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि बराक ओबामा यहाँ पर आए हैं गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि बनने के लिए, गणतंत्र के मौके पर हिंदुस्तान की ताकत देखने के लिए। तमाम कूटनीति के जानकारों की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच एटमी डील पर क्या बात होती है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दोनों नेताओं ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में भारत की तरफ से एटमी करार पर सहमति बन जाने का दावा किया गया।
ये नए जमाने की दोस्ती की वो केमिस्ट्री है जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में नया रस आने लगा है। कैमरे से दूर अकेले में गप मारते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में बात की, उससे तो यही झलक रहा था कि दोनों के रिश्ते निजी स्तर पर काफी मजबूत हो चुके हैं। चाहे लंच के बाद हैदराबाद हाउस के बगीचे में चहलकदमी हो या फिर द्विपक्षीय बातचीत के बाद प्रेस के सामने आना, दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। Although I will share one thing, and that is we compared how much sleep each of us is getting, and it turns out that Modi is getting even less sleep than me. But of course, that's because he's still new. After he's been doing this for about 6 years, maybe he'll be able to get an extra hour. तारीफ के इन चंद छंदों से आगे इंतजार इस बात का हो रहा था कि क्या भारत और अमेरिका कुछ बड़े करारों पर नई पहल करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, उससे लगता है कि परमाणु करार में 2 अहम बाधाएं दूर हुई हैं। रक्षा समझौते में अमेरिका ने आगे बढ़ने का भरोसा दिया है। नई तकनीक साझा करने पर जोर दिया गया है। घरेलू रक्षा उद्योग और निर्माण क्षेत्र में मदद की बात हुई है। समुद्री सुरक्षा पर भी करार हुआ है। अक्षय ऊर्जा पर साथ काम करने पर सहमति बनी है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। I am pleased that 6 years after we signed our bilateral agreement, we are moving towards commercial cooperation. मोदी ने कहा 6 साल पुराने परमाणु करार के व्यावसायिक नतीजे अब दिखेंगे। ओबामा ने रक्षा और सुरक्षा में मिलकर काम करने का वादा किया। संयुक्त बयान के थोड़ी देर बाद ही विदेश सचिव अपने दल बल के साथ रूबरू हुए। उनकी बातों से साफ हो गया कि भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार के अमल में आने वाली मुश्किलें दूर हो चुकी हैं। I will go straight to the civil nuclear side, where we have broken the logjam of the past few years. बराक ओबामा ने मीडिया से बात करते वक्त नमस्ते कहकर अपनी बात रखनी शुरू की। Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for those very generous words. ओबामा ने भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए इस मुलाकात को बेहद अहम बताया। ओबामा ने भी बार बार मुलाकात और संवाद का संकल्प दोहराया। भारत के साथ आर्थिक सुधारों में सहयोग जारी रखने का वादा किया। स्वच्छ ऊर्जा में भारत की मदद को तैयारी दिखाई। परमाणु करार पर अमल की बात की। यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की दुहाई दी और सबसे आगे संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन दिया। Reiterate to the Indian people today that we support a reformed UN Security Council that includes India as a permanent member. At the same time, we see India playing a greater role in ensuring international security and peace and meeting shared challenges. जिन सवालों पर दोनों देशों में एक रजामंदी बनी है, अगर उनके जवाब मिल गए तो अपने 66वें गणतंत्र पर भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। मौसमी सिंह और स्मिता शर्मा के साथ पाल कृष्ण, दिल्ली, आज तक। आज दिन भर मोदी और ओबामा के बीच कई मुलाकातों का दौर हुआ। दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले, दोनों के बीच खुलकर बातचीत हुई। ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों के बीच की केमिस्ट्री कमाल की नजर आई। समय सुबह 9:40, स्थान पालम एयरफोर्स स्टेशन। रविवार की सुबह 9:40 पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पत्नी मिशेल ओबामा के साथ अपने विमान एयरफोर्स 1 से जब पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे तो उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर मौजूद रहेंगे। ये अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्तों में घुलती नई सुबह का खास नजारा था। मोदी अपने चिर परिचित कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और मोदी जैकेट पहने थे, लेकिन उन्हें खास स्टाइल लुक दिया उनके कंधे पर पड़ी भगवा रंग की शॉल ने, जिस पर बूंदें कढ़ाई कर उकेरी गई थीं। मिशेल भी भारत में जन्मी और अमेरिका में बसी बिभू मोहपात्रा की खास डिजाइन की गई काली सफेद पोशाक में जच रही थीं।
लेकिन गर्मजोशी से भरे इस वातावरण को बेहद खास बना दिया इन 2 लम्हों ने। पहले हाथ मिले तो फिर गले मिलने में देर न लगी। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं का यूं गले लगना सबको चौंका गया, लेकिन दोस्ती के अलग रंग में डूबे ओबामा और मोदी ने शिद्दत से इस पल को जिया। मोदी ने फिर मिशेल से भी हाथ मिलाए और मुस्कुराते हुए यूं बात की मानो अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं बल्कि अपने परिवार के किसी खास सदस्य को रिसीव करने आए हैं। मोदी ने ओबामा मिशेल को सामने खड़ी अत्याधुनिक बीस्ट से होटल मौर्या के लिए रवाना किया और तब तक खड़े रहे जब तक ओबामा चले नहीं गए। समय दोपहर 12 बजे, राष्ट्रपति भवन में ओबामा का स्वागत। 12 बजे ओबामा राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ कुछ खास मंत्री उनके स्वागत में मौजूद थे, लेकिन इस स्वागत को भव्य बनाया 21 तोपों की सलामी ने। विंग कमांडर पूजा ने ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। समय दोपहर 12:30 बजे, राजघाट पहुंचे ओबामा। राष्ट्रपति भवन से निकलकर ओबामा 12:30 बजे महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे। मोदी के खास सिपह सलार और बिजली मंत्री पीयूष गोयल उनके साथ थे। ओबामा ने बापू को श्रद्धांजलि दी और पीपल का ये पौधा भी लगाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहुंचे और इस बार फिर उन्हें बापू की आत्मा को, बापू के संदेश को, बापू के प्रवचन को और बापू के जीवन को नजदीक से अनुभव करने का मौका मिला। और उन्होंने फिर एक बार लिखा कि मार्टिन लूथर किंग ने कभी लिखा था और कहा था कि भारत में अभी भी गांधी जी की आत्मा जीवित है और उसे महसूस किया जा सकता है। समय दोपहर 1:10, हैदराबाद हाउस पहुंचे ओबामा। राजघाट से निकलकर अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे हैदराबाद हाउस पहुंचे। तितली के आकार की इस इमारत ने कई बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को आते देखा है, लेकिन आज की मोदी ओबामा मुलाकात जैसा दृश्य शायद पहले कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने ओबामा को देश की संविधान सभा को अमेरिका की तरफ से भेजा गया पहला टेलीग्राम भेंट किया। समय दोपहर 1:20, मोदी ओबामा के बीच बैठक। दोपहर 1:20 पर ओबामा और मोदी के बीच बैठक शुरू हुई। लंच के बाद संयुक्त घोषणा से पहले हैदराबाद हाउस में दोनों नेता लॉन में टहलने निकले। ये अनूठा नजारा था जब ओबामा और मोदी के बीच हंसी मजाक भी हुआ और गंभीर बातचीत भी। खुद को चाय वाला बताने वाले प्रधानमंत्री ने लॉन में सजी खास टेबल पर ओबामा के साथ चाय पर चर्चा भी की। इस दौरान मोदी ने खुद ओबामा के लिए चाय बनाई। चाय पे चर्चा कूटनीति का नया अंदाज था जिसे मोदी ने बखूबी अंजाम दिया। दिल्ली में संजय शर्मा, बालकृष्ण, मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।